أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. أَلَمْ In the, in the name of God, the Lord of mercy, the giver of mercy. Do you not see, prophet, that God knows everything in the heaven and earth? There is no secret conversation between three people where he is not the fourth, nor between five where he is not the sixth, nor between less or more than that without him. Begin with them when wherever they may be. On the day of resurrection, he will show them what they have done. God truly has full knowledge of everything. Yes. Assalamu alaikum, everyone. Again, we are here with a new dimension in teaching online. And welcome to you all in this session. And this is the third session of NDTO, New Dimensions in Teaching. And today we are going to have the third session. And now the topic so far, I would like to listen around 15 people today. Yes. Are you sharing? Yes, the screen is shared. No, I'm not sharing. Move on the slide. Okay, we would like to listen around 10 people regarding the topics we have discussed so far. Yes, I know. More people are coming. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Sir, Lubna here. Yes, welcome, Lubna. Sir, can I share something related to the recitation which you had shared today? Yes. सर इसका सबसे पहले तो मैं लिंक अगर करूं जो लास्ट उस पे डे पे था, तो अगर इसका तर्जुमा जो कि अभी मिस मेहर ने हमें इंग्लिश में सुनाया, उसका थोड़ा सा उर्दू का तर्जुमा ये है कि क्या तुमने नहीं देखा कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह उसे जानता है। कभी 3 आदमियों में कोई ऐसी सरगोशी नहीं होती जिसमें चौथा वो ना हो, और ना 5 आदमियों की कोई ऐसी सरगोशी होती है जिसमें छठा वो ना हो, और चाहे सरगोशी करने वाले इससे कम हो या ज्यादा, वो जहां भी हों अल्लाह उनके साथ होता है। फिर वो कयामत के दिन उन्हें बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया था, बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। रिलेटेड टू द जज़ाकल्लाह सर, रिलेटेड टू द डे 2, मुझे जो उसमें सबसे पंच लाइन लगी थी, दैट आई डेफिनेटली वांट टू रिवाइज इट। आपने एक चीज कही थी, दैट इज द हेल्थ। हेल्थ इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड हील, एंड अगर हील का वर्ड था वो ओल्ड इंग्लिश में होल से ओरिजिनेट हुआ। और एक जुमला जो मुझे बहुत
जिसको अट्रैक्ट भी किया, जो शायद अब लाइफ टाइम मैं उसको आपके नाम के साथ कोट भी करूंगी इंशाल्लाह, कि आज की दुनिया में हम बीमार शख्स किसे कहते हैं, वो फिजिकली बीमार नहीं होता। एक्चुअली आज की दुनिया में जिस शख्स को हम बीमार कहते हैं वो होलिस्टिकली उसके अंदर होलीनेस की कमी होती है। तो होलिस्टिक मीन्स मजमुई और होलीनेस मीन्स तकद्दुस। तो अगर हम टीचिंग प्रोफेशन को कहते हैं कि एक मुकद्दस फरीजा है, तो उसमें तकद्दुस अगर नहीं है मजमुई तौर पर, तो इट मीन्स कि वो शख्स जो है वो बीमार है। दैट इज द पंच लाइन विच आई गेट फ्रॉम डे 2 एंड आई डेफिनेटली वांट टू शेयर इट इन द इनिशियल मोमेंट ऑफ टुडे। फ्रेंड, थैंक यू सर। आपके तर्जुमे के ऊपर एक कमेंट है सिर्फ। जी सर। में आपने पढ़ा जी। आदमी, तीन आदमी, जी। ये ये जरूर जरूर किसी मुज़क्कर ने तर्जुमा किया। जी सर। जी। अफराद, इसमें मर्द और खवातीन का कलाम पाक में सैगा है ही नहीं। बिल्कुल इट इज अबाउट पीपल, ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल सर। जी, तो देखिए तर्जुमे में जरा सी नजाकत में तीन आदमी में मुजक्कर का सैगा लग गया। ये बात सही है, लेकिन परवरदिगार की नियत इंसान है, तीन लोग, कोई से भी। जी सर, हाँ, 3 अफराद या 3 लोग। जी सर। अब सही है। थैंक यू। Right. जज़ाकल्लाह सर। Yes, we have to hear other people. भाई भाई पिछली पिछली गुफ्तगू के बारे में जल्दी जल्दी कमेंट्स करें। हम हम आज हाजिर। जी जवेरिया, उसके बाद उसके बाद लोग Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Yes, I've just shared my interpretation of the story that was given, and it reminds me of lifelong learning, the theory of lifelong learning, and along with that, it is very much connected to the last story that was shared in part 1, and the same way the wanderer or the individual, we as teachers, we are competent, and we are made realize of the burdens that we carry ourselves with, and that the same way of our mentors and our colleagues, and towards the end of the story, as a teacher, we come to know about our flaws and the burden that we carry with ourselves, and then we try to understand and get hold of the situation, the surrounding situation. So that was the thing that I felt really related to, because it happens in everyday lives as teachers. And about the lecture, I was very much impressed by the idea of holistic, of being a holistic person as teachers, because yes, we need to take care of ourselves and our well-being when it comes to nurture a nation. So that was a very good idea put forward by Sir San. And because I previously studied about the theory of lifelong learning, and it is based on the characteristics that it is social in nature and it is individually motivated. That means we have to, throughout our educational career or teaching career, we need to understand our flaws, our strengths and weaknesses and opportunities and drawbacks, whatever there are, throughout our lives as teachers, and try to resolve the problems that we have
So yes, that was what I understood. Wonderful. I noticed that somebody's just given a note that this is their first class. जी बिल्कुल अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये पहली क्लास है तो हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, पूछना चाहते हैं दूसरों को सुने और पिछली क्लासेस के आइडियाज जमा करें. पे अटेंशन. बहुत शुक्रिया. हाँ जी, लुबना इमरान. जी लुबना. Yes, sir. I just want to share some important points from class number 2. नो नो The वेट वेट previous वेट होल्ड इट स्टॉप. आपका टर्न अभी हो चुका. मैं जरा कुछ 9 और लोगों को सुन लूं. जी सर, वो असल में कोई ठीक बोल है, नहीं रहा था बहुत तो मैंने शुक्रिया. कहा उस पॉज को खत्म कर दूं. जरूर थैंक यू जरूर. सर. नहीं, डोंट वरी अबाउट. ठीक है. इट्स ओके. हाँ जी. जी जी, सोनिया सोनिया जी. जी, जी जी सोनिया. सोनिया. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. वालेकुम वालेकुम सलाम. अस्सलाम. वालेकुम एवरीवन. वालेकुम अच्छा, जो अस्सलाम. लास्ट सेशन हुआ था उस हवाले से आई व्हाट आई अंडरस्टूड कि होलिस्टिक के हवाले से जो होलिस्टिक विजन आई वुड से इट्स अबाउट वेल ह्यूमन बीइंग. तो एक टीचर के लिए नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है एक सबके लिए है जो क्लासेस हमारी जो हो रही हैं. सो वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू बी अ वेल ह्यूमन बीइंग. आला. So, sir explained us very well by the examples of जो 5 handles sir ने हमें बताया, the time, the language, the emotion, the health and the attention. जी. तो मुझे ये बात समझ आई, जो टाइम जो है, कामयाब इंसान वो है जिसको पता हो कि इस वक्त को कैसे इस्तेमाल किया जाए और हर काम वक्त पे किया जाए. इसी तरीके से लैंग्वेज के बारे में भी सर ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स बताए थे. अगर वाज वेरी गुड थिंग. अगर मैं बात करना चाहूँ तो बहुत ज्यादा हो ओके. जाएगा, लेकिन कम टू तो द ठीक है, इमोशंस. ये हम कहते हैं टॉपिक्स बताइए, तफसीलात जी जी बताइए. जी मैम. एंड Thank व्हाट you. अबाउट इमोशन. इमोशन इज दैट आप कोई भी काम करते हो इमोशन से तो उसका रिएक्शन वैसे ही आता है. जस्ट लाइक सर ने बहुत अच्छे पिक्चर्स बताई थी, अ ट्रे ऑफ सैंड एंड अ ट्रे ऑफ जेली, व्हिच आई अंडरस्टूड दैट एवरी इंफॉर्मेशन इज कनेक्टेड विद ईच अदर जस्ट लाइक अ चेन. और हेल्थ के हवाले से वो जो सर ने बताया, जिस शख्स में तकद्दुस नहीं वो बजाय कितना ही ताकतवर हो लेकिन उसके कल्ब में मर्ज है. तो यही है कि आप सोशली मेंटली कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन स्पिरिचुअली यू आर वेरी वीक, और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है. True. और द अदर थिंग लास्ट जो फाइनल पॉइंट था पूरी उसका जो था वो यही था कि मतलब जो मेरी तवज्जो मेरी नीयत का अक्स करती है, यानी अमल का दारोमदार नियतों पर है. थैंक यू सर. थैंक यू सो बेशक. वेरी मच. Very good. Thank you so much. Okay, now Afshin. Afshin wanted to say something. Afshin, please. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, मैंने लास्ट क्लास ज्वाइन तो की थी लेकिन मुझे वॉइस का प्रॉब्लम था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी थी कंप्लीट क्लास. हाफ क्लास मैंने ली थी और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने वीडियोस भी देखी उसके बाद, जो यूट्यूब लिंक था उसके थ्रू. तो होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बात की गई थी और उसमें टाइम, लैंग्वेज, इमोशन, हेल्थ और अटेंशन पर बात की गई थी. टाइम में जो मुझे समझ में आया था, हॉक्स एंड लव थ्योरी, उसमें कुछ एक्टिविटी हुई थी वो तो मैं नहीं कर सकी थी, लेकिन जो मुझे समझ में आया कि टाइम को हमें उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह हमें करनी है, मतलब सही वक्त का इस्तेमाल, जो मुझे समझ में आया. इसके अलावा लैंग्वेज के ऊपर बात की गई थी. लैंग्वेज में मुझे बड़ी एक बहुत अच्छी चीज जो लगी, वो थिंकिंग ऑफ लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग, ये बड़ी बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में सर ने कहा कि मजीद इस पर बात की जाएगी. तो मतलब ये बड़ी बिल्कुल. इम्पोर्टेंट चीज है, लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग. इसके अलावा बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी. बहुत जहाँ से मैंने ज्वाइन किया था मैं सुन सकी थी जब ये ब्रेन वर्किंग के ऊपर बात हो रही थी. कि मैं नाम भूल गई हूँ किनकी है, एडवर्ड डी बोनो के हवाले से जो बात हुई थी उनकी. तो इसमें ये था कि हर बच्चे को, जो हम मतलब जो मैं बच्चों के हवाले से ही समझ रही हूँ कि अपनी भी लाइफ पे हम देखें तो हमारी लाइफ का हर पार्ट जो है, जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है वो हम गुजारते चले जाते हैं लाइफ, लेकिन पिछले से कनेक्ट है हर चीज. तो इसी तरह बच्चा है कि जो भी उसके ऊपर हम नक्श करते जा रहे हैं या जो भी हम उसे सिखाते जा रहे हैं, उसकी जो भी एक्सपीरियंस है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आपकी लाइफ में. वो इस तरह जो हमें दो एग्जाम्पल से दिया गया था, एक ट्रे ऑफ सैंड की और जेली बॉल की, जो एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई थी कि ब्रेन पे जो है वो हम जो भी कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए एक्सपीरियंसेस इस तरह है कि सब एक दूसरे से अटैच हैं. आगे आइंदा आने वाले तजुर्बा जो पिछला
उस पे गुजर गया तो वो उससे मुतासिर होता है, जो समझ में आई बात। इसके अलावा हॉलिस्टिक और हॉलीनेस एक के ऊपर सेकंड बात की जी, गई। एक जी सेकंड। जी आप असल जी में सर। लेक्चर की समरी दे रही हैं, डोंट डू दैट। जी जी बस आप जी जी टॉपिक बताना है, क्योंकि हमने uh, यह ना द टॉपिक्स डिस्कस सो फार। थैंक यू। वी जी जी ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आई नोटिस वन मोर हैंड, लाइक टू। हाँ जी, I नोटिस noticed Tyra is in the room. ताहिरा, Tyra, इस्लामाबाद। Islamabad. Afira has also unmuted herself, and I think she wants to say something. Assalamualaikum everyone. I'm very happy to attend this session. Alaikum Tahira Assalamualaikum. assalam. Yes, alaikum assalam. मैं बहुत जल्दी बोलूंगी because मेरे छत पे कुछ काम हो रहा है ना, I'm worried कि I should not become the source of distortion here. Nothing. So like I personally like the questionnaire that was shared last time by my most respected sir, most adorable person in my life and the best trainer. Allah Ta'ala इनको बहुत बहुत जिंदगी दे, and I have lots of prayers for him all the time. बहुत Ameen. खूबसूरत questionnaire था, that was all about doves and hawks. तो at first place, you know, जब हम वो questionnaire कर रहे थे, when I was doing that one, तो I thought, oh, तायरा तुम तो बहुत मीक हो, तुम तो ये हो, but जब सारे A's आ गए और हमें announce कर दिया गया कि doves are really good, so that was the time when I felt literally that moment of pride that at least we are doing something. And then later on there was the you know, like some you know, again, you know, the way the different graphs and the way he assigned he was sir placed different, you know, like comparison, then it was again a marvelous thing to think about ourselves, you know, thinking about one's own self. We don't get time for it, लेकिन इस सेशन के बाद हमें अपने बारे में भी सोचने का टाइम मिला कि where do we stand, especially where do I stand. तो वो ये हुआ कि स्ट्राइविंग डव की जब क्वालिटी निकली तो बड़ा दिल खुश हुआ। अब्बास हुसैन शाह साहब को बहुत सी दुआएं दी, और शायद ये इन्हीं के दिए हुए शुरू के लेक्चर से जिनकी वजह से हम इतने सक्सेसफुल हुए। Very good. एंड सो एक ये कंपैरिजन था दैट आई रियली अप्रिशिएट, एंड दैट वाज अ न्यू थिंग, और वो बहुत अच्छी लगी। और एक ये था कि जो एंड पे बहुत खूबसूरत बात थी कि जी होलिस्टिक एक जो डेवलपमेंट है और फिर हेल्थ में हील। जी, हेलो। नहीं आ रही ना आवाज? आवाज उनकी बंद हो गई ना? The voice is coming. I'm sorry, Tara. Okay. हाँ जी, जी मेहर, who's next? जी अफीरा। तो हमें चाहिए कि हम करें तो, लेकिन वो बर्डन जैसे ऐसा ना हो कि हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो बच्चों पे इफेक्ट करे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता Yes. हम साइड बाय साइड चेकिंग भी लेके चले, अपने प्लानिंग भी ले चले, पीटीएम है या पेरेंट्स से कोई डीलिंग है, आहिस्ता आहिस्ता लेके चले। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा है, अब ये नहीं कि आज हमने जो प्लान बनाया था वो कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं जमा करती जाऊं, पाइल अप भी नहीं करना हमें, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बर्डन को खत्म भी करना है। मतलब बहुत मल्टीटास्किंग होके हर चीज देख के चलना है, लेकिन हमें ये भी ना हो कि सर आ गए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। I was inspired by the discussion that is going on about the interpretation of the wanderer and the new meanings that you are giving to it. Wonderful. May I know who was the last speaker? Abhi. अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज ज़ारा ताहा। Okay, yes, Zara, thank you very much. That is wonderful. And yes, it is indeed a matter of juggling a lot of balls. Apologies for this hiccup.
but technology has its own problems. G, up to you for us to and Yes, thank you so much, sir. Yes, we need more participants to listen about the topics discussed so far. Still, we are continued with the same thing. Yes, please. okay. There seems to be a problem with the yes. Okay, Meher, would you quickly like to take a look at these? Yes. These were the topics that we have already discussed in the previous one, and they are the first topic we have discussed in to the heading of a holistic vision. Actually, the discussion was going on about a holistic vision. And then under the heading of holistic vision, we covered these topics at time, and we did Hawks and Dove exercise with the participants. And then we discussed about the language. And in the language session, we discussed about the language of thinking, the language of community, language of identity, language of initiative, language of mindfulness, language of praise and feedback, and the language of listening. And then the next topic we covered in the previous session was the emotions. And in the emotion, we covered, we discussed about the tray of sand and a bowl of jelly. That was the part of a growth mindset, if you remembered. And in the last, we discussed about the holistic vision, and then we discussed about the health. And these four key points we discussed about that: heal, whole, holistic, and holiness. And finally, we discussed about the attention. And in the attention, we discussed about this, the attention and intention. So these were the key topics that we have discussed in the previous session. And now moving towards today's day 3, the part that we are going to discuss today are the new rules of engagement. So under this heading, we are going to provide you some new, more insights about the engagement of the students. And for definitely enlightening the topic, I would request our honorable teacher, mentor, sir, to please continue with this, the new topic, the new rules of engagement. Yes, sir, please. Thank you. Thank you. In the language of diplomacy, war, hostility, and peace, the words used in the English language are the rules of engagement. The rules of engagement are ways by which two parties, armies, which are hostile to each other, which are on different sides, they must have a protocol, a set of rules of courtesy of how to deal with a movement towards peace, towards the ending of the hostility and the war and the fighting. So if during a war, one side, one group of soldiers raises a white flag, there are rules by which the soldier or the commander of one side speaks to the commander on the other side and agrees to some norms of peace and ending the hostilities. That is the rules of engagement. ये अंग्रेजी जबान का एक मुस्तनद डिप्लोमेसी का मुहावरा. But we have applied it to teaching and learning. We have applied it to our new dimensions of teaching. So now we are going to take a look at the new rules of engagement. The new rules of engagement. And these then are a way of looking at teachers and students, classrooms,
the teaching and learning mahal, ecology, environment, and how we can have excellent quality engagement. This will be our focus for today. So we always benefit from our teachers and mentors who are far away. I haven't had the honor of meeting Dennis Shirley, but I have met Andy Hargreaves, and it is for me a very great honor to mention this book. And you can see that this is the book. ये ऑलरेडी मेरे हाथ में है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत मोटी नहीं है ये पढ़ी जा सकती है. It is very good. 5 paths of students engagement, blazing the trail to learning and success. एक दिलचस्प बात हम बस आपको बताते हैं, because this is what I do. ये किताब 16th June 1621 में शाया हुई, पेंडेमिक के फौरन बाद, और अक्टूबर 5 2021 को ये किताब हमारे हाथ. तो आप देख सकते हैं कि आई ट्राई एंड कीप माई सेल्फ अपडेटेड टू द बेस्ट डिग्री दैट आई कैन. ना अब की जो गुजारिशात हैं, yes, I hope everyone is listening and paying attention. Hello, chat में बस yes डाल दें सब लोग. ठीक है जी. Yes, sir. Yes, thank Yes, you. sir. Yes, okay. 5 enemies of engagement. Now we are going to take a look at what is the problem. All of us want our students to be engaged, but they are seriously disengaged. So the real problem is disengagement. And disengagement has 5 dimensions. अब देखें, 5 enemies of engagement. These are the technical terms for it. ये बहुत जबरदस्त है. Disenchantment, disconnection, disassociation, disempowerment and distraction. ये 5 engagement के मुखालिफ हैं. These are opposites, and we are now going to look at each one of them. And please understand, ये हमारा पूरी गुफ्तगू का जुमरा जो है, ये तालिब इल्मों पर है, students पर है. It is extremely sad that we notice our students suffering from these or a combination of these in their learning. जाहिर है जब ये होंगे तो learning नाम की चीज मुमकिन नहीं है. It won't be possible. Let us take a look at each one of them in turn. Disenchantment. ये मैं बहुत अभी एक सेंस में क्लैरिटी से बता दूं कि ये बहुत कम है. यानी अफसोसनाक है जब कभी भी 1 या 2 बच्चों को भी हो जाए पूरी स्कूल में. कोशिश तो हम करें कि ये बिल्कुल ही ना हो, लेकिन इट इज वेरी वेरी सैड कि इट इज देयर. और इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है. तो मैं अफीरा सिद्दीकी, अफीरा जी प्लीज पढ़िएगा. Okay, sir. Disenchantment. This is a disease of the soul, a spiritual malaise that is taking away from us our sense of being human. यानी बस मैं क्या कहूँ, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इससे बचाए. ये एक यानी जिस्मानी बीमारी नहीं, डिजीज ऑफ द सोल. Soul. ये एक किस्म की ऐसा मर्ज है कि बच्चे को सिर्फ यही नहीं कि उसको कोई काम लायानी लग रहा है, उसको जिंदगी इटसेल्फ लायानी लग रहा है. उफ, खुदा हमें महफूज रखे. लेकिन बहुत ही अफसोसनाक रियलिटी है कि कुछ बच्चों के ऊपर कुछ तजुर्बात, कुछ तकलीफदेह बातें ऐसी लग जाती कि उन गरीबों के साथ, मासूम ही कहना चाहिए, नासमझी में, बस जो भी, उनके ऊपर ये चीज का आर्जा लग जाता है. अब आप समझ सकते हैं कि दिस इज एक्सट्रीमली सीरियस. हम में से हर कोई इसको ठीक करने का मजाज नहीं,
लेकिन अगर हम ये पहचान लें तो यकीनन मदद के लिए हम फिर हमसे ज्यादा काबिल और वो लोग जो कि इसके मजाज हैं हम उन तक उसे पहुंचा सकते हैं। तो ये तो एक यानी जिक्र की खातिर हमने कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला हमें बचाए कि ये ना हो, और अगर बहुत कम अगर है तो हम इसके लिए कोई ना कोई इंतजाम करें। ये तो यानी डिसइंचार्टमेंट, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब इसके बाद वाले सारे जो है इस पर हम कुछ कर सकते हैं और करें। आइए जी, डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन जी, जवेरिया जमाल प्लीज पढ़िएगा। Sure, sir. This disconnection, this is when the student feels disconnected with other people, his classmates, the teacher, and sadly, sometimes siblings or parents. डिस्कनेक्शन, कुछ बच्चों को महसूस होता है कि ये स्कूल मेरा है ही नहीं, ये दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मैं अहम हूं ही नहीं, टीचर के लिए भी मैं अहम नहीं हूं, यानी डिस्कनेक्शन। अब आप जो हैं जब इस पे गौर करें तो अब आप फौरन ही समझ सकते हैं कि हम लोग इसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए आज की हमारी गुफ्तगू और इंशाल्लाह अगली क्लास की भी हमारी ये पूरी मरबूत गुफ्तगू होगी कि हम बच्चों के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड करें कि उन्हें ये डिसकनेक्शन महसूस ना हो। राइट, आगे चलते हैं। डिसएसोसिएशन, हाँ, ऑल राइट, आई सी समवन नेम्ड मुनीरा। मुनीरा प्लीज पढ़िएगा। जी सर, when the student feels no group bonding, no clubs or societies or hobbies or gatherings, we have disassociation. जी, यानी बच्चे को कोई बिलोंगिंग का सेंस नहीं, उस कोई ग्रोह नहीं जिसको वो कहे कि मैं इनका हूं और ये मेरे, कोई क्लब्स, सोसाइटीज, हॉबीज, गैदरिंग्स जिसमें कि बच्चा कहे हाँ ये दिस इज माय आइडेंटिटी। तो जब इस तरह से डिसएसोसिएशन हो जाए स्कूल में, क्लासरूम में, तालीमी निज़ाम में, तो यू कैन सी कि ये खतरनाक चीज है, बच्चा इंगेज नहीं होगा लर्निंग में। ठीक, वी मूव ऑन। हाँ, डिसएम्पावरमेंट, yes. May I ask Nuran to read? Nuran, please read. Sorry. Yes. जी, मैं आपके साथ लाऊं? Disempowerment. please go on. जी, This is a helplessness against the events of the world, the social side of the spiritual disease, disenchantment. Obviously, too much discussion of the news on every channel will create the sense of what's the use. माशाल्लाह, थैंक यू। ये डिसएम्पावरमेंट, एक सेंस ये होना कि मैं जो भी कर लूं उसका कोई फायदा नहीं, मेरे पास कोई पावर नहीं है चेंज लाने का, इस्तकलाल का, उस पर अमल करने का या उससे कोई फर्क पड़ने का। तो ये जुमला जो है आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि अगर घर में वालिदैन और अगर टीचर्स और अगर बच्चे तमाम मिल करके बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा एक डिस्टिंक्शन टीवी न्यूज की तमाम चैनल्स पर डिस्कशन करेंगे मुल्की हालात पे और गैर मुल्की हालात और दुनिया के सियासत पे और हालात, मतलब ऐसी चीजें जिसके के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा तो आप फौरन ही समझ जाइए बच्चे के दिलों में एक सवाल उठेगा, व्हाट्स द यूज, ये काम करने का क्या फायदा, मैं स्कूल पास कर लूं तब भी क्या हो जाएगा, मैं मैट्रिक में कर लूं या मैं ए स्टार भी ले आऊं ओ लेवल में तो फिर क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, ये तो सब खत्म होने वाला है। ये नाउ इफ अगर ये सेंस आ जाए तो दिस इज अ सेंस ऑफ डिसएम्पावरमेंट। ठीक है जी,
आई होप आप समझ रहे हैं किस तरह ये एक खतरनाक किस्म की बीमारियों की लिस्ट है जिसमें कि हमारे बच्चे मुलविस हो सकते हैं, और अल्लाह ताला हमें मदद करे ऐसा कर। बट आप देख रहे हैं व्हाट दे आर, राइट? भाई चैट पर डालते जाइए कि आप लोग मेरे साथ हैं। यस, माशाल्लाह, ओके। और इससे अब मैं बस आखिरी पर आ गया, 4 डिस हो गए हैं, तो आइए 5वें पर। ये और इसका है ये। तो भाई सिदरतुल मुंतहा का मैंने नाम देखा। सिदरा, प्लीज प्लीज। जी, इज इट पॉसिबल? सिदरा प्लीज। वाला भी पढ़ चले आप पढ़ लें। जी जनाब। सर में आई रीडर हाँ प्लीज। डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन बाय डिस्ट्रैक्शन। वाह, इससे ऊपर भी एक लाइन है, वो भी पढ़। T.S. Eliot says it well. जनाब, थैंक यू, थैंक यू। टी.एस. एलियट सेज इट वेल। आप जानते हैं टी.एस. एलियट हमारे दौर के बहुत बड़े यानी पोएट, लिटरेचर के। ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1948 और ही डाइड इन 1988। एंड टी.एस. एलियट हमारे दौर के बड़े नामों में से हैं। उनकी एक तवील नज़म में से एक ये लाइन है, और अंदाजा लगाइए अगर ये बात वो 1948 में कह रहे थे जब हालात इतने बुरे न थे, तो खुदा मालूम आज अगर वो हमारा मोबाइल फोन देख लेते तो किस कौन सी लाइन लिखते। ये बहुत ही अजीब बात है। डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन बाय डिस्ट्रैक्शन। क्या यानी एब्सोल्युटली ये हमारी लाइफ है आजकल कि हमारे हाथों में मोबाइल फोन है और हम अच्छी भली गुफ्तगू कर रहे हैं घर के बड़ों से, बच्चों से, आपस में अच्छी बात कर रहे हैं कि अचानक यानी पता नहीं क्यों खामोखा हमारी नजर हमारे मोबाइल फोन पे जाती है, जिसमें कि कोई फजूल फेसबुक पेज पर किसी ने कोई फिल्म लगाई है, और अभी तो हम वो देखने की तरफ ही गए हैं कि अचानक कोई और टिकटॉक की लिंक जो है वो खुल जाती है। तो डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन बाय डिस्ट्रैक्शन, यानी वो फेसबुक का डूम स्क्रोलिंग कोई अहम ना था, उसमें टिकटॉक की लग फिल्म देखना कोई अहम ना था, उसपे बड़ी कोई जोक का आ जाना भी तो बिल्कुल ही नहीं, उसमें फिर एक और व्हाट्सएप। तो गोया हमारी यानी तवज्जो का जो मुसीबत की हुई है वो है डिस्ट्रैक्शन। इसलिए हमने अटेंशन के बारे में इतनी तफसीली गुफ्तगू की अभी नहीं की है, थोड़ी और करेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अटेंशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ अटेंशन। मैंने अपनी वीडियो जरा बंद कर दी है बिकॉज मुझे लगा कि मेरा कनेक्शन कम जरा सा हल्का हो रहा है। इज दिस बेटर? आर यू एबल टू सी इट वेल नाउ? ऑलराइट, फाइन। सो जनाब, डिसएंगेजमेंट, ये तमाम बातें थी डिसएंगेजमेंट। सो इफ ऑल दिस वाज डिसएंगेजमेंट, if all this was disengagement, then we must also pay attention to the roots of disengagement। 4-5 बातें जो डिसएंगेजमेंट तालीमी निजाम में उसको राइज कर देती हैं। राइट, ओके, आई वुड लाइक समबडी टू रीड। दुआ नसीम जी, दुआ जी पढ़िएगा। Defeating disengagement
They are outside us in outdated examination pressures that sacrifice in I'm sorry, I can't read it. Yes. May I, sir? Okay. Intrinsic. Intrinsic. Okay. Thank you so much. Engagement to anxious memorization. हाँ, बहुत खूब। डिसएंगेजमेंट के जो फोर्सेस हैं वो एक कदीम, एक फजूल इम्तिहान का निज़ाम है जो हमें सीखने के लुत्फ से फारिग कर देता है और एक बेमानी अंदाज में हाफजे पर जोर देता है कि बस तुम ये रट लो, तुम ये बाय हार्ट कर लो, समझ में आए ना आए उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारे इम्तिहानात के फजूल प्रेशर्स हैं जो हमें तकलीफ में डालते हैं। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू, आगे पढ़ें। सर मे आई? हाँ जी। ओके, दे आर in curricula I'm sorry. They are in curricular cultured with uninteresting content and cleansed of controversy. हाँ, दे आर इन करिकुला, जो कि प्लूरल है करिकुलम का। करिकुलम, हाँ, उसका प्लूरल है, ठीक है जी। cluttered with uninteresting content and cleansed of controversy, यानी इशू जो है वो हमारे करिकुलम के साथ जो मसला है वो ये है कि वो स्त्री शुदा है उस पे स्त्री फेरी गई है, तमाम तकलीफ दे कंट्रोवर्शियल तकलीफ दे बातें हटा दी गई हैं और उससे बिल्कुल ही वो ब्लैंड, फीका, बिला किसी जायके का, मतलब बस चपटा सा, तो ये हमें पढ़ाया जाता है। तो इसके नतीजे में बच्चे डिसएंगेज महसूस करते हैं। ठीक, हाँ जी, लुबना इमरान आपका टर्न है, प्लीज रीड। Yes, sir. They are in the culture of market competition that set students and school against each other instead of building sense of community and belonging among them. वाह, क्या बात। यानी एक तरफ होना तो ये चाहिए था कि सब लोग मिलजुल कर सीखते, बच्चे क्लासरूम में, क्या ही अच्छा होता अगर टीचर स्टाफ रूम में मिलजुल कर सीखती। इससे भी ज्यादा अच्छा, क्या ही अच्छा होता अगर पड़ोस की स्कूल की मैथमेटिक्स की अच्छी टीचर इस स्कूल की कमजोर मैथ्स टीचर्स के लिए मदद के लिए आ जाती। ओहो, ये तो दुनिया ही और है। क्या ही अच्छा होता अगर मेरी स्कूल की अंग्रेजी की अच्छी टीचर पड़ोस की स्कूल की टीचर्स जो परेशान है अंग्रेजी में, उनको जाके मदद करती। कहीं ऐसे डायमेंशन से हट करके हमने हर एक को एक दूसरे का दुश्मन बना रखा है, कंपटीशन में डाल रखा है, तुम्हारे कितने एज आए, तुम्हारे कितने, तुम्हारे, और इस किस्म की फजूलियात के नतीजे में हमने अपने निजाम को डिसएंगेजमेंट में बच्चों को डाल दिया। ये सोच है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टेरेबल रिलेशनशिप जो हमारे सामने है। हाँ जी, ओके, आई नोटिस हियर लारोश। यस, लारोश उमर, प्लीज पढ़िएगा। Yes, sir. They are in overly strict behavior management systems that secure short-term compliance at expense of empowering students to develop their capacities for self-determination. वाह, थैंक यू लारोश। तो अब देखिए, एक तरफ तो ये सारी बातें हैं जो कि इम्तिहानी निज़ाम और करिकुलम और मार्केट फोर्स, फिर एक तरफ स्कूल के अंदर में एक गिरोह है, टीचर्स हैं जो हर हुक्म की तामील चाहते हैं। हे, तुमसे मैंने कहा खड़े हो जाओ, तुमसे मैंने कहा ये कॉपी में एक लाइन छोड़ के लिखो, तुमने बाथरूम जाने के लिए परमिशन क्यों नहीं ली पहले, क्यों बेंच पे खड़े हो जाओ, आउट क्लास के बाहर। यानी खामोखा की स्ट्रिक्ट बिहेवियर मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसके नतीजे में बच्चे सहम करके हर बात मानते तो हैं, लेकिन जैसे ही वो टीचर क्लास से और जैसे ही बच्चा तालीमी निजाम से बाहर होता है, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज,
कोई सेल्फ कंट्रोल, कोई जब्त, कोई नफ्स की तरबियत नाम की चीज है ही, ना उसको कोई अहमियत लगती है। व्हाट अ पिटी। सो ये फिर इसकी कीमत टीचर्स को उस वक्त तो सजा से बच्चा सीधा हो जाता है, लेकिन इन फैक्ट वी नो कि वो थोड़ी देर की ही जीत है, थोड़ी देर, आगे जो असर है उसका वो बहुत अच्छा नहीं। जी सॉरी, लाहौर, हाँ सॉरी, लारोश प्लीज पढ़िएगा अगेन। They are okay. They are in adoption of technology by heads who are more excited about it than evidence informed. जी, अब एक तरफ तो टेक्नोलॉजी के सारे यानी चमत्कार हैं, उसके सारे कमालात हैं, तो मसला ये है कि स्कूल के हेड्स जिन्होंने देखा ही जिंदगी में पहली गुजारे, इजादी 3-4 साल पहले हुआ है, वो उस पर फरेफ्ता हो जाते और फिर वो स्कूल में हरू भरू नाफिज कर देते। नहीं जनाब, हर टेक्नोलॉजी शायद इतनी करामत नहीं जितनी स्ट्रेट कागज कलम से काम हो सकता है। हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। तो वो एंडी हाग्रीज कहते हैं कि ऐसे स्कूल पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स जो खामोखा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने पे जिद करते हैं, जबकि कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि इससे लर्निंग बेहतर होती है, तो सबसे बड़ी सबूत तो यही है ना कि हमने और आपने, और मैं जाहिर है मैं न्याणियों को उम्र के हिसाब से नहीं कह सकता कुछ भी, मैं सिर्फ अपने बारे में कह सकता हूँ कि सीनियरिटी के नतीजे में बगैर टेक्नोलॉजी के हमने कुछ सीख ही लिया और कोई कोई खास कमी ना हुई। आई लर्न, हमारे सामने पावर पॉइंट भी ना था और स्मार्ट बोर्ड्स भी ना थे और आईपैड भी ना था, टैबलेट भी ना थे, लेकिन हमने पढ़ना लिखना और सब बेसिक बातें सीख ली कागज कलम से ही। सो खामोखा, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ का वावेला नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एक मुनज्जम, एक मुनसिफाना इस्तेमाल, जस्टिस, इंसाफ के साथ, ठीक। ऑल राइट, हाँ अब राइट भाई, मैं देख रहा हूं कि ओके, एक मिनट, सकीना मुर्तजा, सकीना मुर्तजा प्लीज रीड। Assalamualaikum. Disengagement is often treated as wall that students erect to be barricade themselves off from their teachers and the learning. Instead, we should think of disengagement as a window into how young people are actually feeling about their learning and their lives. वाह वाह, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. देखिए जी, इस पेज के ऊपर जो, इस स्लाइड के ऊपर जो दो अहम अल्फाज हैं मैंने ब्लैक किए हुए हैं, अ वॉल और फिर एक दूसरा लफ्ज है अ विंडो। जब बच्चे डिसंगेज हों तो अक्सर टीचर्स और हेड्स और माँ बाप और दूसरे लोग समझते हैं कि ये गोया किस्म का दीवार है, अब इस बच्चे के साथ क्या किया जाए, वो एक हिसार के पीछे खड़ा हो गया है। लेकिन डेनिस शर्ली और एंडी हार्ग्रीव्स कहते हैं नहीं जनाब, आप इसको दीवार ना समझें। जी जवेरिया पूछ रही हैं, इज दिस कोट फ्रॉम द सेम बुक? अगर आपकी मुराद ये है वॉल एंड विंडो वाली, तो जी ये वही है, पिछले भी सब उसी किताब में से। थैंक यू। तो जब बच्चा डिसंगेज्ड हो तो हमें उस बच्चे से कता ताल्लुक करने के बजाय और उस बच्चे पर लेबल लगाने के बजाय हमें करना ये चाहिए, इस पर बहुत तफसील से अगली क्लास में बातें आने वाली हैं, मैं इशारा दे दूं। इसके बजाय हमें इन बच्चों के साथ ताल्लुक जोड़ना चाहिए, हमें उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, मेंटरिंग करनी चाहिए और हमें उन्हें पास बुलाकर 1-to-1 एक शफकत से पूछना चाहिए, बेटा क्या मसला है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वी हैव टू टॉक लाइक दैट। और यही वॉल जो है
फिर वो विंडो बन जाएगी जिससे हमें उस बच्चे के जहन में एक खिड़की सी खुल जाएगी, तो हमें समझ आएगी कि क्या चीज है जिससे वो बच्चा परेशान। लो, Yes, sir. हाँ जी भाई, कोई से भी 3 लोग ये वॉल और विंडो पर एक एक तबसरा कर दें। जी लुबना। सर मेरा पर्सपेक्टिव इसमें यह है कि अगर डिसएंगेजमेंट किसी भी फैक्टर्स की वजह से हो भी रही है तो उसको वॉल की तरह मजीद क्रिएट करना, ब्रेक टू ब्रेक उसको बढ़ाते चले जाना, ये फिर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो परमानेंट डिसएंगेजमेंट हो जाएगी एंड दैट लीड टुवर्ड्स द डिसएंचैंटमेंट। इंस्टेड ऑफ दैट हमें जिस वक्त वो लग रहा है कि किसी भी फैक्टर्स की वजह से डिसएंगेजमेंट हो रही है, जैसे कोविड-19 में वी फील द डिसएंगेजमेंट, हमें वो चीज फील नहीं होती थी जो एक ऑन साइट और इन पर्सन क्लासेस की थी। हमारी इमेजिनेशन जो थी वो कभी थी ही नहीं इस तरह की कि ऑनलाइन किस तरह से हम डिसएंगेज हैं। तो वो उस वक्त जिस वक्त कोई फैक्टर्स की वजह से डिसएंगेजमेंट हो रही है, उसी वक्त वॉल क्रिएट करने के बजाय विंडो क्रिएट कर लें। एक तो पहली बात ये कि उसको आइडेंटिफाई कर लें कि वो फैक्टर क्या है, देन उसके बाद विंडो क्रिएट करके उस लिंक को दोबारा से एक तरह से लिंक को क्रिएट कर लें दोबारा। तो दैट इज द थिंग, टू नॉट टू क्रिएट द वॉल बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग द विंडो। वाह, थैंक यू। मैं देख रहा हूँ थैंक यू। अजीमी कंदील स्कूल से हाथ उठाया है। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वॉल और विंडो का जो लास्ट क्लास में आपने जेली और उसका सैंड का मतलब वाह कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो भी एक तरीके से कनेक्ट करता है कि जैसे वाह वॉल जो है वो जैसे बॉल उस पे घिरी तो अंदर तक जो है वो कनेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं चला कि मतलब क्या प्रॉब्लम है। लेकिन विंडो जैसे आपने जेली का बताया था कि पानी वो उसके अंदर घिरा तो वो अंदर का मतलब अंदर तक फैल गया। तो इसी तरीके से जैसे वॉल और विंडो जो है उस लास्ट क्लास में कनेक्ट कर रहा है। वाह वाह वाह, थैंक यू। इज दैट इकरा? ये इकरा बोल रही थी? कंदील स्कूल से सदफ फातिमा। सदफ, अच्छा अच्छा, सदफ बोल रही थी, सॉरी। हाँ, कंदील स्कूल से। थैंक यू सदफ, बहुत शुक्रिया। वंडरफुल, बिल्कुल सही आपने बात को कैच किया है। जी जवेरिया। जी जवेरिया, गो ऑन। Yes, sir, what I understand is there should be proper uh, channels of communication between the teachers and the students, and that is how teachers can understand the problems that are faced by the students, and then they can create ways to resolve those issues and make the students connected to that school, to that community, and their classrooms. बहुत थैंक यू। नुसरत वांट्स टू से। जी नुसरत। Assalamu alaikum, sir. How are you? Sir, I want to add that as a teacher, it's better that we become a window rather than a wall. वाह Being a window means that providing students with opportunity to gain knowledge and understanding, offering them insights and perspective and facilitating their learning. वाह But when we become a wall, on the other hand, it impedes their progress and limit their access to information. सो ट्रू। So as a teacher, our aim should be to become a window that opens up new horizons to our students. वाह, बहुत खूब। थैंक यू नुसरत, बहुत नवाजिश। Jazakallah, sir. नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह। ओके, तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें थोड़ी और बैठी। अब आइए एक और मुगालते को हम साइड पे करें। शर्ली और सॉरी, या एक, हाँ जी, शर्ली और हार्ग्रीव्स कहते हैं, दे पॉइंट आउट an amazing, the great error। एक और मुसीबत है, यानी ये तो एंगेजमेंट के ऊपर डिसएंगेजमेंट की 5 बातें हुई। कुछ हमारे अहले ज़र्फ, अहले नजर, अहले तालीम के दिल में कुछ ये बातें भी बैठी हुई हैं, खुलूस से बैठी हुई हैं, अपनी समझ के मुताबिक, बट
सैडली ये तीनों बातें गलत। यानी अब जरा सा एक और रुख पे जरा सा गुफ्तगू जाएगी। सीरियस बात, माशाल्लाह आप लोग सब काफी तवज्जो से सुन रहे हैं, आई एम हैप्पी। आइए जी, पहला देखते हैं, 3 बिलीफ्स, अकायद, 3 बातें जो हमारे बड़े बड़े खुलूस से बिलीव करते हैं, लेकिन शर्ली और हार्ग्रीव्स और मैं मैं भी अग्री करता हूं कि ये गलत है, दे आर मिस्टेकन। पहला, ओ सॉरी, हाँ, education has to be relevant to be engaging। यानी एक नारा उठा है आजकल कि इस चीजों, बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो चीजें जिसका जिंदगी से ताल्लुक। जी बिल्कुल, रियलिटी से ताल्लुक। पीपल टॉक लाइक दिस, इट शुड बी रेलेवेंट। जी, ओवरऑल तो इसके साथ कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, 8 साल के बच्चे को बहुत सारी चीजें का रेलेवेंस बताने के लिए जो इल्म चाहिए वो उस उम्र में मुमकिन ही नहीं। सो रेलेवेंस की आर्ग्यूमेंट थोड़ी सी, यानी क्वेश्चन मार्क के साथ और एक तवाजुन के साथ दिल में बिठाइएगा। हर चीज रेलेवेंट नहीं हो सकती, और ये बात बिल्कुल सही है। ये मैं इसकी बहुत आला मिसालें भी दे सकता हूँ, सिंपल जिंदगी की भी बातें दे सकता हूँ। आप ये बताइए, अगर किसी को राग, मौसीकी, ये जो हमारे बड़े वाले राग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिंगिंग के हवाले से, जो हमारे उस असातिज़ा के घराने वाले राग है। तो हमने ये किस्सा एक्चुअली सुना अपने टीचर्स कि एक यंग मैन पहुंचा एक बहुत बड़े उस्ताद साहब के पास कि जी मुझे राग जो है आपसे, आप इसके उस्ताद है, मुझे सिखाई। उस्ताद साहब ने कहा जी मैं तुम्हें अपनी शागिर्दी में लूंगा, बशर्ते ये कि तुमको जब मैं कोई काम कहूं तो तुम बगैर चूं चिरा के वो काम करोगे, तब आगे जाके बात हो, मुझसे सवाल नहीं करो। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो कहा जी तुम्हारा सबसे पहला काम ये है, ड्यूटी, कि तुमने रोजाना सुबह फजर फजर के बाद मैदान में जा करके दौड़ना है, आधा घंटा। बोला है मैं तो यहाँ रियाज के लिए आया था, राग भैरवी सीखने, तो आप मुझसे फजर को दौड़ने का कह रहे हैं। उस्ताद साहब ने कहा देखो यही तो मैं तुमसे नहीं कह रहा था कि तुम मुझसे सवाल पूछोगे, क्यों? बोला वो अच्छा अच्छा सॉरी ठीक है। भाई वो बच्चे ने वाकई दौड़ना शुरू किया, तो 1 हफ्ते के बाद उसके लंग्स में जो पावर आया और उसके नतीजे में उसके सांस में होल्ड करने की जो क्वालिटी आई, ये जबरदस्त रेलेवेंस था। तो देखे ना, जब तक बच्चे का वो तजुर्बा ना होता, ये बात का तुक उसको समझा ही नहीं जा सकता। ये एक मिसाल हुई बिल्कुल क्लियर। तमाम टीचर्स जो 6ठी 7वीं 8वीं के लड़कों को पढ़ाती हैं, ये मुशाहिदा हमने अपने मुल्क में देखा, अपने घर में भी देखा, और दीगर स्कूल्स पे भी टीचर्स ने इससे ताउन किया। When the boys are about 11, 12, 13 years old, they have this great intense interest in dinosaurs. They are interested in Brontosaurus, in Kleptosaurus, in Streptosaurus. एक से एक उन्हें डायनासोर ड्रॉ करने, उन्होंने उसकी किताबें पढ़नी, उन्होंने जुरासिक पार्क देखना है, उन्होंने हर तरीके से डायनासोर्स पर फिदा होना है कि जी टिरेनोसोरस रेक्स इस कुवत का होता था, और फिर फला, और ये भाई ये इंतहाई इंगेजिंग मौजू है, लेकिन हरगिज रेलेवेंट नहीं। डायनासोर्स आज दुनिया में नहीं है। तो देखिए ये जो 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 थिंकिंग की जो बात, नो, इट कैन नॉट बी रेलेवेंट ऑल द टाइम। बस अभी एक मैंने तवाजुन के साथ एक बात कर, आगे बढ़ते हैं। हम टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट एजुकेशन हैज टू यूज टेक्नोलॉजी टू बी एंगेजिंग। जी नहीं, बहुत सारी चीजें बगैर टेक्नोलॉजी के बहुत आला और अच्छी की जा सकती हैं, हमें करनी चाहिए, एंड वी शुड यूज टेक्नोलॉजी। और थर्ड, एक खासा दिलचस्प है और मजे का है, और वो ये है
बी फन टू बी एंगेजिंग है है बी फन। ये भी एक अजीब मुसीबत है कि हमारे चंद टीचर्स और चंद लोगों को एक मस्खरापन, एक मजाक, एक ठट्ठे उड़ाना, हर चीज के अंदर में लतीफे देखना। नहीं जी, नहीं जी। कुछ जिंदगी की कुछ अच्छी लेकिन सीरियस रियलिटीज भी हैं, और उसको भी सीखने के लिए बच्चे खासा तन मन धन डाल देते हैं। तो ये ख्याल कि हर चीज पुरलुत्फ होनी चाहिए, मजाक होनी चाहिए, तो जनाब लम्हाती तौर पर तो मजाक वाली बात हो जाएगी, लेकिन वो सुरूर, वो सुकून, वो खुशी जो मेहनत मुशक्कत करने के बाद जो खुशी नसीब होती है कामयाबी की, ये फिर एक और चीज है, एक और किस्म का। तो हमें समझाना चाहिए बच्चों को कि हाँ बेटा, कभी एक आध दफा लतीफा हो गया, जोक हो गया, वी अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी के बगैर लर्निंग होएगी नहीं जी, ऐसे। हाँ भाई, कुछ लोग जरा 7-8 लोग जल्दी से यस डाल दें ताकि लगे कि मैं ये 3 नुक्तों से भी फारिग हुआ। यस, बहुत खूब, थैंक यू, थैंक यू, यस, यस, बहुत शुक्रिया। सो यू आर नाउ फॉलोइंग दिस अमेजिंग थिंकिंग एंड लॉजिक। 5:06 हो गई है भाई, अब ब्रेक लेते हैं 10 मिनट। 5:20 पे हम लोग दोबारा आते हैं। आप भी ब्रेक लें, इन अफकार पे गौर करें। यही बात कि हर चीज लुत्फ की नहीं हो सकती, बस यही अच्छी बात है कि हम इस वक्त वो आपको ब्रेक दें और आप थोड़े गंभीर होकर सोचें, फिर इससे और ज्यादा पुरलुत्फ बात के लिए आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
Assalamu alaikum everybody, we are back. Walaikum salam, sir. Walaikum salam. जी जनाब, we are back. वालेकुम सलाम सर. Yes, thank you, thank you. Okay, आगे बढ़ाते हैं जी हमारी गुफ्तगू को। और अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ डिसएंगेजमेंट की। अब आइए एंगेजमेंट के लिए हम पर एज टीचर्स, हेड्स, कोऑर्डिनेटर्स क्या चीज वाजिब है। जी वालेकुम सलाम सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 5 पार्ट्स ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट। आइए जी, जो लोग के स्क्रीन की तस्वीर लेने के रसिया हैं उनके लिए एक इंतहाई आला बा कलर रंगीन स्लाइड अगली आ रही है। कैमरा निकालें, इसकी फोटो लें, यानी कि ये। हाँ जी, तो ये जनाब Sir, kindly keep the previous slide. ये वही है 5 पार्ट्स ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट। ये वो किताब का नाम भी है, ठीक है जी। और अब हम उन पार्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि जवाब हैं या कह दीजिए इलाज हैं डिसएंगेजमेंट की बीमारियों से, ठीक है जी। हेलो। Yes, sir. हाँ, तो जनाब ये हैं the 5 paths to engagement and the 5 paths of student engagement। और अब हम एक एक को अलग तरतीब क्लॉकवाइज अंदाज में रन अप करते हैं। ठीक ठीक, ओके। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, लेट मी रीड। Teachers should harness students' intrinsic motivation concerning existing and new interests that arouse their curiosity and build their senses of passion and purpose। ये कुदरत का एक करिश्मा है और एक मोजज़ा है कि तमाम वालिदैन जिनके घर में जिन्होंने देखा है नौमौलूद बच्चा 1.5 साल, 2 साल, 3 साल कि उसकी एक बेपनाह क्यूरियोसिटी है कायनात के बारे में। यानी 2, 2.5, 3 साल की उम्र के बच्चों के जो शौक, जो पसंद, जो उनको शौक है कि दुनिया को समझें, वो इतना पावरफुल है कि इसके लिए सिर्फ तालीमी निज़ाम की बोरियत है जो इस वाले शौक को ताहयात खत्म कर। ये हावर्ड गार्डनर का जुमला ही, यानी मेरा भी है, लेकिन हावर्ड गार्डनर ने जरूर उर्दू में तो नहीं कहा होगा। Howard Gardner says children are born with a lifelong curiosity. It takes school to finish all the intelligence. Amazing.
Children are born with all the intelligence, but it takes school to destroy them all. तो जनाब इंट्रिंसिक वैल्यू, आप और हम पर लाजिम है कि बच्चों के जो एक्चुअल शौक है उनके साथ अपने मौजू को जोड़ करके उनके शौक को जिला देते और कहे हाँ बेटा करो, जरूर डू इट। और उसके नतीजे में जो बच्चे का शौक होगा वो अपने आप को सिखा देगा जो भी आपको सीखवा। ये एंगेजमेंट के 5 उसूलों में से पहला। ठीक, फाइन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंस students should be encouraged and supported to work hard on topics that have importance for them, the world, or both. क्या खूबसूरत। मैं लियारी इलाके में जानता हूं एक साहब हैं जिन्होंने बच्चों को एक ऑब्जर्वेशन दिया कि बच्चों, चौथी जमात के बच्चे, आप कहीं समझें कि बहुत ही वेल ऑफ होंगे, नहीं, बड़े बच्चे नहीं, क्लास 4 और 5 के बच्चों के ग्रुप को एक स्कूल मास्टर ने कहा मालूम करो अपने इलाके में हफ्ते में, एक हफ्ते में, कि कौन से मसाइल हैं जिसका हल हमें करने की जरूरत। बच्चे ने मुतफरिक किस्म की फहरिस्तें बनाई, पानी का मसला, उसका मसला, उसका मसला, और जो लियारी शहर में मसले। कुछ बच्चों ने कहा कि ये जो मैनहोल की जो चुराए जाते हैं और जिसके नतीजे में रात के वक्त हमारे रोड्स खतरनाक हो जाते हैं गाड़ियों के लिए, मोटरसाइकिल्स के लिए, इसके लिए कुछ किया जाए। इम्पोर्टेंस, जब बच्चों ने एक बार यानी वो सुख काम को हाथ में लिया और जब वो मसरूफ हो गए मैनहोल के इंतजामात के लिए कि ये चुराने जाने का इंतजाम बंद हो, वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों का शौक कैसे लगा। दिलचस्प कहानी, इंशाल्लाह वी विल शेयर इट लेटर। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, एसोसिएशन, feeling included in and belonging to the school and community should not be left to chance. Every part of the school should build belonging for everyone. मैं अक्सर स्कूलों में जाके देखता हूं, दीवारों पर, दरो दीवार पर, कॉरिडोर्स में, क्लासरूम के बाहर और दरमियान में, जिम्नेजियम में, ऑडिटोरियम में, दरो दीवार पर क्या है? तो अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पेंट, रंग है, कलर है, बस। जनाब, अगर हम बच्चों का काम एक मुनज्जम अंदाज में दीवार, दरो दीवार पे लगाना शुरू करें कि बच्चे महसूस करें ये मेरी जगह है। अम्मी देखें, मेरा वो 7वीं जमात का मजमून है ना, मेरे क्लास के कॉरिडोर के बाहर लगा है, आप आइएगा, 1 हफ्ते तक लगा रहेगा, उसके बाद चला जाएगा, उसके बाद दूसरे बच्चे का अच्छा मजमून आ जाए। जब बच्चों को महसूस हो कि ये मेरी जमीन, मेरा जगह, मेरा काम, मेरा। एक और स्कूल प्रिंसिपल को मैं जानता हूं जिन्होंने इंतजाम ये किया, किसी रिजल्ट डे पे या किसी और दिन पे, ड्रामा डे या कोई भी जिसमें पेरेंट्स भी आए हुए हो, हर बच्चा स्टेज पर जाएगा जरूर, खा थोड़ी ही देर की। यानी एक बच्चा तो इनाम लेने के लिए जा रहा है ना, तो बड़े गले में हार वार लग रहे हैं, फाइन, वो फर्स्ट है, सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स वगैरह। लेकिन उसने जुगाड़ ये लगाया प्रिंसिपल ने कि किसी न किसी वजह से बच्चे को स्टेज पे बुलाएंगे जरूर और उसको एक सर्टिफिकेट जरूर देंगे। तो उन बच्चों को भी सर्टिफिकेट मिली जिन्होंने मुनज्जम अंदाज में होमवर्क करके दिया, उनको भी दी जिन्होंने लाइब्रेरी की किताबें वक्त पे रिटर्न की। अजीब, यू वुड से इसमें क्या, भाई यही तो पॉइंट है कि द चाइल्ड इज ओनली 9 years old, और अगर उसने मुस्तकिल अंदाज में किताबें लाइब्रेरी पे तारीख पे रिटर्न की है तो ये बात भी नोट हो गई और उसको उस दिन इनाम के तौर पे बुला दिया गया। सो इस तरह से एसोसिएशन की लिंक्स बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एम्पावरमेंट। वाह, schools must not feel like places of random adult imposition. ये अच्छा लफ्ज है।
रैंडम अडल्ट इम्पोजिशन। भाई मेरी स्कूल में है ना, मिस कुलसुम की मर्जी है कि लोग यूं हों, लेकिन मिस सुमेरा की मर्जी है कि ऐसे लोग यूं ना हों। ऐसे नहीं होना चाहिए। मिस कुलसुम और मिस सुमेरा को मिलकर तय कर लेना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। आला जवेरिया को अच्छा लगा। इवन इफ दे आर वेल मैन, ठीक है, हम बदनियती की बात नहीं कर रहे, लेकिन भाई ऐसा ना, स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ वॉइस इन द करिकुलम, असेसमेंट, वेज ऑफ लर्निंग, पॉलिसीज दैट डिफाइन द लाइफ ऑफ द स्कूल। एक आध लफ्ज एक्स्ट्रा क्या है, मैं जल्दी से हटा दूं, और एक कॉमा रह गया, ये ठीक है जी। सो ये जो है एम्पावरमेंट, बच्चों को करिकुलम में, असेसमेंट में, वेज ऑफ लर्निंग में, पॉलिसीज में कोई ना कोई हिस्सा उनकी आवाज को शामिल किया जाए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आगे हमारा एक पूरा सेशन आ रहा है तो उसके ऊपर आगे बात करें। मास्टर, hard earned accomplishment provides more lasting fulfillment and continuous engagement than fleeting moments of fun. Excellent. वो खुशी जो तमाम टेबल्स, पहाड़े याद करने में और महारत की बात जो है उसका लुत्फ और है, और लम्हाती तौर पर कह कह लगाना, मस्खरापन करना, दिल लगी करना, इसका मजा और है। अब आप समझ जाइए कितने मजे से ये मास्टरी वाली बात वो फन वाली बात को लिंक करती। आई नो, मैं कभी नहीं मिला किसी इंसान से, बड़ी यानी एडल्ट, जिसने ये कहा कि मुझे पहाड़े आते हैं, 12 तक के, 12 तक के पहाड़े पूरे आते हैं, और मुझे इस बात का अफसोस है। यानी यानी आप गौर से देखें, न आने का तो अफसोस है लोगों, या किसी को शिकवा जवाब शिकवा के बंद याद हैं तरतीब से चंद, या किसी को कलाम पाक की सूरतें याद हैं, तो ये तमाम सब बातें बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन जिसको भी आती हैं उसका ताहयात एक मास्टरी का लुत्फ बोले। एंड this concludes the 5 dimensions, the 5 ways of engagement. हाँ, एक बार फिर मेरे टीचर एक्सको स्केटमा साहब का आज का लुत्फ जुमला, the line of sight must be straight to the goal. मैं 3 लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की उनसे, ठीक है जी। मेमूना सलमान हैं, बिल्किस हैं, और यमुना तारिक हैं, ठीक है जी। द लाइन ऑफ साइट मस्ट बी स्ट्रेट टू द गोल। ये 3 लोगों से मैं सुनना चाहूंगा कि इस जुमले का क्या मतलब, बताइए। जी जनाब। जी जनाब बताइए। Can I speak? हाँ हाँ प्लीज। Okay. आपके बाद The line of sight must be straight to the goal. I think it means that your mission or your aim should be towards your goals. Here, sight means your vision. बहुत खूब। It should be straight. It should not be like that you are getting diverted from here and there, and you should focus on what you are going to achieve. बहुत खूब, थैंक यू, गॉट इट। आप बात बिल्कुल सही समझ गई, लव्स विजन आपने कह दिया, वेरी गुड। बिल्किस जी, बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
Yes, I would agree. I'm agreeing with the lady who just said, but I would like to add out here that विजन में हमें जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं हमें उनको भी मद्देनजर रखना है, उनका भी ध्यान रखना है, ताकि if the vision is straight with obstacles, we can pre-plan how to overcome them आला and achieve our goals. बहुत खूब बिल्किस। मैं कमेंट करता हूं लेकिन मैं तीसरी आवाज भी पहले सुन लूं। हाँ जी, द थर्ड। जी जनाब, वेरी गुड। जी, हमने मेमुना का नाम लिया था, मेमुना सलमान। जी, मुझे लगता है कोई मसला है। मुनीबा फिरदौस। जी मुनीबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, this line stated very clearly that if you have a focus to your aim, first decide your aim and then make a plan for it. If you have a focus to your aim, there is nothing on the way that will distract you. अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में पहाड़ अबूर कर लें. Progress takes time and progress is not a continuous, is not an equal process. It is continuous but रोज इक्वल तरक्की नहीं होती. तो अगर कभी कम काम किया है, डिसअपॉइंट नहीं होना, थोड़ी मेहनत करें, अगले दिन थोड़ा ज्यादा कर लें, बट अगर अपने फोकस से हटेंगे, then your plan is gonna die and don't let that die. वाह वाह, थैंक यू, माशाल्लाह। I have a wonderful group here today. Excellent. I love it. आपने तमाम बातें बिल्कुल exactly fit कर दी. The line of sight आप बिल्कुल सही समझ गए हैं कि नजर जो है गोल पर हो, कदम जमीन पर हो, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि रास्ते में पत्थरों की वजह से आपको रास्ता शायद इधर उधर करना पड़े, लेकिन नजर से गोल नहीं हटना चाहिए। यू गॉट इट एग्जैक्टली। सो अब आप समझ गए हैं कि अगर हमारा मंशा एंगेजमेंट है तो हमारी नजर एंगेजमेंट से नहीं हटनी चाहिए। हाँ, दुश्वारियां आती हैं, कनेक्शंस उसके साथ करते रहना। आला, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, अब भाई मैं इख्तितामी गुफ्तगू पर आ गया और उसके बाद मैं फिर कुछ इजाफी असाइनमेंट्स, टास्क, उस टाइप की चीजों पर आता हूँ। आइए जी, एक डिसएंगेजमेंट के चैलेंज पर अब मैं जरा खतरे की नोट उठाना चाहता हूँ। इट इज समथिंग वेरी सीरियस, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत सीरियस है, पर्टिकुलरली विद ओल्डर चिल्ड्रन, यानी कि मैट्रिक या लेटर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल। तो मैं समझता हूं कि अभी इस वक्त एज टीचर्स शायद हमारी नजर ये बच्चों पे नहीं है, मैट्रिक के कुछ बच्चे हैं, फाइन, लेकिन लेकिन ये आगे के वो यानी एज पेरेंट्स it is possible that we have children who are at the higher levels in the university, college या university. तो आज के दिनों में जो एक चीज के मेरा काम चीजें पढ़ते रहना है और गौर करते रहना है, तो आइए देखते हैं। हाँ, ये शख्स, ये बड़ा हंसमुख बंदा है, रॉबर्ट और उनकी ये किताब है हेल्पिंग कॉलेज स्टूडेंट्स फाइंड पर्पस। तो जैसा कि हम अक्सर किताबों का जब जिक्र करते हैं तो खुद यानी हमारे पास वो होती है। सो एनीवे, सो द पॉइंट इज हेल्पिंग कॉलेज स्टूडेंट्स फाइंड पर्पस में इन्होंने द कैंपस गाइड टू मीनिंग मेकिंग, ठीक है, जो चीज के अब मैं अपनी इख्तितामी गुफ्तगू पे लाना चाहता हूं, और एग्जैक्टली अबाउट 10-11 मिनट हमें मिलेंगी आप लोगों की गुजारिशात सुनने के लिए। जी, एक मिनट।
जी, so yes, mashallah, people are writing about the line of sight, and I noticed Muniba has written a note. जी बिल्कुल, बात फोकस की भी है और अपने डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस की भी है, बेशक बेशक बिल्कुल ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट नैश और की मदद से इस किताब की एक को राइटर भी हैं मिशेल मरे। तो ये जो हैं लोगों ने एक चीज पॉइंट आउट की, जरा सा तवज्जो से, क्योंकि ये स्लाइड का कमाल जो है मेरी कॉलीग्स के हाथ जाता है, जो ये सब अच्छे अच्छे काम करके हमें अच्छे काम करने के लिए इंतजाम करते। आइए, once upon a time all students knew that they had only two choices। जी जी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा को पता था कि हमारे पास यही दो चॉइसेस हैं, स्विम या सिंक। अब जाहिर है आप बिल्कुल समझ ही गए हैं कि इससे मुराद है पास और फेल, पास हो जाए या फेल। इफ दे पास, a different career trajectory was possible, leading to a kind of success। ये मैं अ काइंड ऑफ ब्रैकेट में डाल चुका हूं, बिकॉज याद रहे, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, कामयाबी के तरीके और मकासद और बहुत सारे हैं, और मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि बगैर तालीमी निज़ाम के कोई कामयाबी है ही नहीं। दैट इज नॉट ट्रू। मैं इस बहस में जा रहा। बात यह है कि जो लोग के कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रास्ते पे चल चुके हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी का कोर्स पास करके जो जिंदगी लेनी है वो स्विम है, और अगर वो फेल हो जाते तो फिर वो सिंक है। इन मानों में एक बिल्कुल क्लियर हमें एक तालीमी निज़ाम के ऊपर फैसला कर दें। प्लीज याद रखिए, इट इज पॉसिबल कि मैं सिरे से यूनिवर्सिटी ना जाऊं, ये आर्गुमेंट ही नहीं, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर कभी कामयाबी नहीं होऊंगा, ये बात भी बहस नहीं है। सो माशाल्लाह, यू आर विथ मी ऑन दिस। हम निज़ाम की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, फाइन। सो यानी कि इफ दे पास, तो उनकी जिंदगी का रास्ता कुछ बन जाएगा, बट इफ दे फेल, their life path was fixed and sadly pointing downwards। उन मानों में एक थप्पा सा लगा रहेगा कि तुम फेल हो गए, तुमने कोशिश की, तुमने फला, लेकिन तुम फेल हो गए। एक मार्क लगा रहेगा उन लोगों। तो ये सिंक और स्विम का चॉइस था। लेकिन हाँ, नाउ वी हैव अ न्यू काइंड ऑफ चैलेंज। देखिए, मैं तो आपको एक हिस्टोरिकल बात बता रहा था, तो इधर तक तो आप मेरे साथ हैं, प्लीज फॉलो दिस। बट नाउ वी हैव अ न्यू काइंड ऑफ चैलेंज। द स्टूडेंट इज नॉट स्टूपिड, he is smart enough to know that his effort will get him through the exams। आज हमारे सामने जो चैलेंज है वो तालिब इल्म बेवकूफ नहीं है, वो ज़हीन है। वो इतना उस हद तक जहानत रखता है कि मैं कितनी कम मेहनत करूं तो इम्तिहान से तो मैं गुजर ही लूंगा, मैं फेल नहीं हूंगा, लेकिन मैं मेहनत भी नहीं करूंगा। आ आ माशाल्लाह। जी जी जी, किसी ने, सो ही यूजेस टू नाइदर सिंक नॉर स्विम। और माशाल्लाह हाजरीन में लोग ऑलरेडी गैस कर चुके हैं, और वो है जी। जी, यानी फ्लोट। तो ये इत्तेफाक से ये एक पेंटिंग है, ये तस्वीर नहीं है, ऑल्दो इट इज वंडरफुल। फ्लोट की कैफियत बिल्कुल ठीक कैच की है इसने। हाँ जी, ओके, मैं यहाँ रुकता हूँ, कुछ लोगों से सुनना चाहूंगा। जी मुनीबा, आप ही से शुरू करते, क्या हर्ज क्या है फ्लोट में? आइए आपसे उल्टा सवाल। Done, sir. Thank you for giving me the chance, sir. Of course. Well, sir,
वो लोग जिनके पास एम्स हैं, दे नो हाउ टू वर्क, दे नो हाउ टू प्रोजेक्ट। वो लोग जिनको डर है वो फेल हो जाएंगे, दे विल वर्क ऑन इट एंड एटलीस्ट ट्राई टू कैच अप विद देम। फॉर दोस्त जिनको कोई टेंशन ही नहीं है, उनको पता है हम पास हो या फेल हो, वी हैव नो एम, नो चॉइसेस, हमें बस निकलना है यहाँ से, वो लोग फ्लोटिंग के उसको ज्वाइन करते हैं। दे हैव नो इंटरेस्ट इन वॉट एवर दे आर डूइंग, आइदर दे आर ट्राइंग टू जस्ट गेट अवे फ्रॉम इट और दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेव देयर माइंड फ्रॉम इट। ओके तो फ्लोटिंग का करते हैं, जस्ट निकलो यहाँ से, ये एक चीज मिनट है, एक इससे मिनट एक निकालना मिनट है। मोनिबा एक मिनट। आपने फ्लोटिंग की कैफियत को डिस्क्राइब किया और ये बिल्कुल जी ठीक सर। डिस्क्राइब किया, लेकिन नहीं, अब यहां से अगला सवाल उठता है, तो हर्ज क्या है? सर हर्ज ये है कि वर्ल्ड इज गेटिंग इम्प्रूव्ड एंड थिंग्स आर गेटिंग हार्डर। राइट नाउ दे कैन लिव लाइक दैट, बट जब फ्यूचर में उनको अब कोई बैकअप सपोर्ट नहीं करेगा, आला देन हाउ आला कुड दे सर्वाइव? अभी तो Excellent. पेरेंट्स फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, टीचर्स हैं, मैनेज दे कैन सी देयर बैक, बट आगे जाके क्या? जी बहुत खूब। माशाल्लाह, हमारी तरफ से तालियां और दीगर लोग जज़ाकल्लाह सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एग्जैक्ट जिंदगी को जो लोग सीरियसली नहीं लेते, अपनी ही जिंदगी को जो लोग सीरियसली नहीं लेते, वो लोग भूल जाते हैं कि उनके अतराफ भी कोई शख्स उन्हें कोई सीरियस काम देगा ही नहीं, विच मीन्स वो हमेशा लायानी, बेमानी, सतही काम के लिए बुलाए जाएंगे और एक वक्त आएगा जब वो लायानी, बेमानी, सतही काम गूगल एक्सेल के अंदर में जम हो जाएगा, वो माइक्रोसॉफ्ट के एक ऐप में जम हो जाएगा, वो रोबोटिक्स के एक प्रोग्राम में चला जाएगा और वो इंसान बेबस हाथ मलता रह जाएगा। न वो नौकरी दी जा सकेगी उसको, न उसको कोई मुलाजिमत मिलेगी, और कम से कम बावकार मुलाजिमत, एंड ही विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड। ये है मसला। बहुत आला, थैंक यू, माशाल्लाह। सो बस जी, मैं अपनी गुफ्तगू को ये मैं वहां तक ले आया। हमने सोचा था कि हम बहुत से लोगों से सुनेंगे, चलें, मैंने सोचा था 7, नॉट 7 नाउ, बट हु 3 पीपल वी हर्ड मुनीबा से वेरी वेल। 3 पीपल, बताइए जी, फ्लोट के कबाहतें क्या है? जी लुबना। सर मैं जिस पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोट जो है उसमें कोई एफर्ट नहीं है, जी गो विद द बिल्कुल फ्लो वाली बात है। ऐसा ही है, ठीक है, करेक्ट, कोई एफर्ट नहीं है। तो पता चला कि एफर्टलेसनेस में तो आपकी ग्रोथ मुमकिन ही नहीं। बहुत खूब, थैंक यू। 1, हाँ जी, 2 और लोग। जी दुआ नसीब, जी दुआ। सर मुझे लगता है कि अगर इंसान कंटिन्यूस फ्लोटिंग पोजीशन में ही रहेगा, देखिए जब या तो आप सिंक हो गए या तो आप डूब गए, या फिर आपने जो है वो जो है स्विम कर लिया, अपने उस मैदान को क्रॉस कर लिया, तो ये होती है कि आप पार हो गए। फ्लोटिंग पोजीशन में आप कंटिन्यूस वाटर में ही रहोगे और वो कहते हैं ना कि आपकी बॉडी गलना शुरू हो जाएगी वहीं पे, और आपको मकसद हयात कभी नहीं मिल पाएगा। आला, अच्छा, अब और लोगों ने भी हाथ किया। जी जी, आई विल हियर ऑल ऑफ यू। अजीम कंदील, हाँ जी बोलो। गालिबन सदफ, जी सदफ। यस सर, फ्लोटिंग में जो है वो मकसद नहीं होता किसी चीज का। वाह। कि स्विमिंग में है कि वो एक मकसद होता है कि उसके लिए हम स्विमिंग करते जाते हैं, लेकिन फ्लोटिंग में ऐसा होता है कि इंसान को जो है वो मकसद नहीं होता, वो किसी भी चीज पे एडजस्ट कर लेता है। और एक वक्त आता है जब वो चीजें खत्म हो जाती, वो एडजस्ट हो सकता था। लारोश, जी जनाब। एग्जैक्टली सर, डे 2 पे हमने बात की थी बुक द 8th हैबिट के हवाले से कि वी डोंट चेंज अंटिल वी फील द पेन। सो आई थिंक कि फ्लोटिंग में कोई पेन नहीं है,
जो कि वाह स्विमिंग में है और डूबने में है हमारे वाह, पास। नवाजिश, थैंक यू लारोश। भाई ये आईटेल A26 अपना नाम बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल। हेलो, हाँ जी। जी आईटेल A26 यहाँ है, अपना नाम बताइए प्लीज। जी हेलो, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करके प्लीज अपना तारुफ कराइए। हेलो। अस्सलाम हाँ वालेकुम जी। सर। सलाम। आज मेरी ये पहली क्लास है आपके साथ, मैं फर्स्ट ओके, टाइम ये सेशन अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, मेरे जो समझ में आया तो है नाम फ्लोटिंग बताइए की। पहले। अस्मा साजिद। ओके, गो ऑन। जी, मुझे ये समझ में आया है कि फ्लोटिंग में जो जो भी स्टूडेंट होगा वो डिपेंडेंट भी रहेगा। स्टूडेंट हो, इंसान हो, बिल्कुल जो भी हो वो डिपेंडेंट भी होगा। वो उसको हर वक्त वो कोई ना कोई मतलब ढूंढता रहेगा मौके कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट करता रहेगा, जरूर कुछ ना कुछ जरूर, ढूंढता ठीक ठीक, गॉट इट। रहेगा। अच्छा, आखिरी पॉइंट जवेरिया जी, जवेरिया बताओ। यस सर। सर मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो फ्लोटिंग वाला पॉइंट है ये कनेक्ट करता है बिल्कुल पहली स्लाइड से, जो कि डिसइंशेंटमेंट के ऊपर बेस करती है, जिसमें जो है जो कि डिजीज़ ऑफ सोल है। अगर हम फ्लोट कर रहे हैं कंटिन्यूसली एक ही सिचुएशन में है तो हम स्टेगनेंट हो जाएंगे एंड दैट विल कॉज डिजीज ऑफ आवर सोल। और इससे ये होगा कि हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो ख़त्म हो जाएगा। हाल, भाई क्या थैंक बात। यू सर। इंशाल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। लोग क्लैपिंग भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आला। बस जी, मैं अब इख्तितामी बात पर आ गया एंड आई हैव अबाउट 7 मिनट्स, सो आई हैव टू कंक्लूड एंड ओके, माशाल्लाह, वाओ, ओके। एंड बिफोर वी क्लोज, आइए जी एक जरा असाइनमेंट को नोट करें। गुड टीचिंग। अब आज आपकी हमने तवज्जो ऑन करवा दी गुड टीचिंग से कि अच्छा जी, एंगेजमेंट अच्छी चीज है, डिस एंगेजमेंट अच्छी चीज नहीं है, दुश्मनान ये हैं, वगैरह। फाइन। गुड टीचिंग का एक हैंडआउट अभी क्लास के खत्म होने ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लग जाएगा। अच्छा, अब ये असाइनमेंट इस मंगल से, यानी कि आज से अगले मंगल तक आपने इसको नोट करना है। हम व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके साथ हो। असाइनमेंट में मार्टिन हाबरमैन की गुड टीचिंग की 10 सिफात दी गई। आप इसे पढ़िए। उसके नीचे असाइनमेंट की हिदायत दी हुई, बहुत ही सिंपल। और अब आप अपनी रोजमर्रा क्लासेस में ऑब्जर्व कीजिए और चंद के बारे में हमें 6 सतूर 7 सतूर, भाई याद रखिए 6 या 7 लाइंस हम कागज की कह रहे हैं, व्हाट्सएप की नहीं। आई मीन दिस, ठीक है जी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप ये समझे कि व्हाट्सएप ग्रुप में जितने हम उसकी बात नहीं कर रहे, तो आपने अपने चंद लम्हात के ऊपर लिखना है कि मेरे ख्याल में जब फलां चीज मैंने की तो गुड टीचिंग की एक सिफत या दो नजर आई, दैट्स इट। तो आपने, और कोई इसमें नंबरिंग की बहस नहीं है, जल्दी नहीं है, आराम से इस मंगल से लेके अगले मंगल तक कि ये असाइनमेंट कंटिन्यूअसली जारी रहे। इट इज बिगिनिंग फ्रॉम टुडे। और इंशाल्लाह थर्सडे की क्लास में आपको मजीद टूल्स एंड आइडियाज मिलेंगी और ये 10 आइडियाज और हो गई, तो यू विल हैव लॉट ऑफ पावरफुल टूल्स एंड आइडियाज टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव गुड टीचिंग। बिकॉज ये सारी कोर्स का मकसद अल्टीमेटली बच्चों ही को ठीक से पढ़ाना है, अच्छी तरह से पढ़ाना। ठीक है जी, तो ये जनाब असाइनमेंट है, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। तहरीरी लिखा हुआ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जो वजाहत होगी हम वो भी करेंगे। ठीक, आइए जी, हमने फाइनली हमने तिलावत कलाम पाक जिससे हमने बात शुरू की उसके ऊपर एंड करते हैं। ओके।
हमने सूरह मुजादिला की आयत से तिलावत शुरू की। सूरह मुजादिला कलाम पाक की 58 सूरा है, 58, और उसकी ये आयत नंबर 7 है। और हम क्या बताएं, इससे बहुत ही अच्छा लुबना उमर ने शुरू ही में इसके ऊपर एक अच्छा सा तर्जुमा कर दिया। बस ये अभी के लिए जो एक कमाल का परवरदिगार की बरकत कह दीजिए, उसकी परवरदिगार की बेपनाह रहमत कह दीजिए, ये आयत मुबारका को मैं मिलजुल कर काम करने की परवरदिगार की तरफ से सनद का वो मैं समझता हूँ, ये वो इस्नाद है, ये वो हुक्म है कि हमें मिलजुल कर काम करना है। अगर 3 हैं तो हम ये जान लें कि चौथा परवरदिगार है, अगर हम 5 हैं तो हम समझ लें छठा परवरदिगार है। कम हो या ज्यादा वो हमारे साथ है जहां कहीं भी हो। सेंस ये है, एक मफहूम कि ये जो हमने अपने निजाम में ये मुसीबत डाल रखी है, मैं अकेला, मैं तन्हा, मैं खुद तो कर रही हूं ना, इनको क्या, ये इनको नहीं, ये सोच से हम हमेशा के लिए इस आयत मुबारका के हवाले से आ गया कि नहीं, हमने मिलजुल कर काम करना। खुद परवरदिगार ने कहा तुम 3 लोग साथ हो, तुम 5 लोग साथ हो, वो मेरी बरकतों को तुम मेरे साथ ले, मेरी रहमत को तुम मेरे साथ। बस मैं समझता हूँ कि आप लोग सब भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। तो दैट ब्रिंग्स मी to the conclusion of today's class. Thank you very much. Now, in closing, the voices will be yours. Yes, mashallah. Thank you, Nusrat. आपको बात पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो लोग जो कुछ कमेंट्स करना चाहें तो इधर चैट हाजिर है, और जो लोग बोलना चाहें, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहर फातिमा की तरफ से भी स्क्रीन पर जी, थैंक यू। Yes. Thank you so much, everyone. जी रुबना, बताइए। सर, मेरा एक सवाल ये है कि अगर हम एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, चाहे स्टूडेंट्स को देखते हैं, या अगर मैं अपने आप को एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर समझती हूँ, तो अगर मैं इस सिचुएशन में अपने आप को रखूं, दैट इज सिंक, स्विम और फ्लोट। कुछ लोग होते हैं जो बहुत हार्ड वर्कर्स होते हैं लर्निंग में, और कुछ होते हैं जो स्मार्ट लर्नर्स होते हैं। तो हाउ कैन आई रिलेट दिस सिचुएशन? मतलब मुझे इस वक्त जो चीज समझ में आ रही है, दैट इज एक्चुअली स्मार्ट लर्निंग मीन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आई हैव टू स्विम एंड आई हैव टू फ्लो द फ्लोट, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो मुझे थोड़ा सा इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये सुनना है कि अगर स्मार्ट लर्नर्स हैं तो किस सिचुएशन में वो फॉल करेंगे, और अगर हार्ड वर्किंग यानी हार्ड वर्कर्स जैसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, तो वो किस सिचुएशन में फॉल करेंगे? दैट इज माय क्वेश्चन सर, एंड आई वांट टू नो योर प्रेशियस वर्ड्स ऑन इट। थैंक यू सर। ओके भाई, पहली प्लीज याद रखिए, स्मार्ट वर्क हम पर लाजिम, यानी टू बी ह्यूमन we have to always excel, and to excel we always have to do things with the proper tools, learn those tools and do our work in the best possible way. ये तो गिवन है। अच्छा, ये बात जहां आपने कही कि हाँ मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूं, तो मैं भी समझता हूं कि मैं भी लाइफ लॉन्ग लर्नर हूं, तो इस पर मेरा कमेंट ये होगा कि मैं अपनी जात को कुछ प्रोजेक्ट्स दे देता हूं, फिर जब वो एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो मैं अपने आप को एक अगला प्रोजेक्ट, इस तरीके से मेरा हदफ जो है वो बेहतर से बेहतर बढ़ता चला जाता है, और मैं आपको कभी भी इल्म के एतबार से इतना भरा हुआ नहीं समझता कि मैं कोई और चीज सीख न सकूं। तो जब मैं एक किस्म की चीज पर समझता हूं कि मेरा हाथ बैठ गया है, तो फिर एक बार फिर नई चीज ले लेता हूं जहां मैं एक बार फिर तालिब इल्म बन जाता हूं। तो मेरी जात में हमेशा इनकिसारी रहती है, और मैं इससे हमेशा जान सकता हूँ कि वो चीज जिस पर मैं उबूर रखता हूँ, वो सामने वाला बच्चा या टीचर या शागिर्द
वो आज अगर शुरू में सीख रहा है, तो मैं भी तो किसी और चीज के सीखने में जब पहल करता हूं तो इतनी ही मुश्किलात पाता हूं। तो ये करने से मेरे दिल में एक रहमदिली पैदा होती है उस तालिब इल्म के नाम, जिसको वो चीज मुश्किल लग रही है जो मेरे लिए बहुत ही आसान है। लेकिन मैं फिर ये भी जानता हूँ कि वो आसान एक दिन में नहीं हुई, एक उम्र चाहिए। तो ये एक आजिजी की बात, मुस्तकिल प्रोजेक्ट्स को डालते रहने की बात, और परवरदिगार की तौफीक की तलब करते रहने की बात साथ साथ। बेशक सर, जजाकल्ला। दैट इज द थिंग कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो हमें समझते हैं टीचर्स को कि ये शायद फ्लोटिंग कंडीशन में है, ये तो कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा। दैट इज द थिंग। वो समझते हैं कि सारी मुश्किलात उन्हीं के लिए हैं, वही सिर्फ स्विम कर रहे हैं या वही सिंक हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली टीचर्स। हाँ लुबना, जी सर। मैं समझता हूँ कि कभी कभी टीचर्स अगर इस बात का इजहार कर दें कि मैं जी सर। खुद अल्लामा इकबाल ओपन से एमफिल कर रहा हूँ, मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ, तो तालिब इल्मों में यस सर। इज्जत की कमी नहीं होती, बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाती, बहुत बढ़ जाती है। यस सर, आई एक्सपीरियंस ऑल दीस थिंग्स। यस सर, हाँ। मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू, अजीमी कंदील स्कूल का हाथ देख रहा हूँ जी, बोलो भाई। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने बताया जी कि क्लास में टीचर जो है वो बच्चे कोई भी इस तरह की हरकत करते हैं जिसपे उनको पनिश कर देना चाहिए, उस टाइम तो उसने वो बात मान ली, लेकिन टीचर की क्लास के बाद जाने के बाद वो बच्चा वही दोबारा हरकतें शुरू कर देता है क्योंकि वो चीज उसके अंदर नहीं उतरी। तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल या आप बताएंगे, सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए? मैं खुशखबरी दे दूं कि एक पूरा सेशन हमारा डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस का आ रहा है, जिसमें ठीक इसी बात को हम उठाएं। और ठीक है जी, वी विल डू इट, हम करेंगे जरूर, ये मेरा मौजू है। और मैं देख रहा हूं कि जवेरिया का भी सवाल है। नहीं जवेरिया, नीड टू स्टॉप द क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, बट आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें भेज दीजिए, वी विल रिस्पॉन्ड। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। फ्रेंड्स, दोस्तों, साथियों, तालिब इल्मों, स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिए। और जुमेरात के दिन 4 बजे से थोड़ा पहले आ जाइए, तो इंशाल्लाह यही तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you